chemical equivalent. Chemical reaction is actually change in mass and charge. किसी भी chemical reactions के दौरान mass और charge का change देखने को मिलता है, number of electrons में changes देखने को मिलते हैं. Now, capability to react or chemical effect of a substance is measured in terms of number of equivalents. किसी भी substance की जो reacting capability होती है, जिसको हम लोग chemical effect कहते हैं, उसको हम लोग measure करते हैं number of equivalents. And number of equivalents is mass upon equivalent mass. Just mass of the reacting substance upon equivalent mass of the reacting substance. And your equivalent mass is molar mass of the reacting substance upon n factor. Now, different n factors are A, B, C, N, and V. A here is acidity of a base. If the reacting substance is basic in nature or it is a base, then its acidity is the n factor. Now, acidity of a base is the number of hydroxide ions released by a base during a chemical reactions. किसी chemical reactions के दौरान कितने hydroxide ion generate कर रहा है base, वो उसकी acidity कहलाएगी. और the number of H plus ions to which it combines during a reactions, या कितने H plus ions वो combine कर रहा है, वो उसकी acidity कहलाएगी. For example, if we have NaOH, so it releases one hydroxide ion during reactions, so we can say that acidity is 1, that is n factor is 1. Similarly, magnesium hydroxide, it will generate 2 hydroxide ion during reactions, so its acidity will be 2. Aluminum hydroxide 3, right? So this is the n factor for a base. Now the n factor for an acid, अगर आपका reacting substance acid है, तो हम उसकी basicity को लेंगे. और basicity किसी acid की क्या होती है कि वो कितने H plus ion release कर रहा है reactions के दौरान, या कितने hydroxide ions से वो combine कर रहा है. So this is the basicity of an acid. For example, if we have acyl, so it generates only one hydrogen during the reaction, so we can say that its n factor is 1, right? Similarly, if we have S2SO4, right? So इसके अंदर क्या दिख रहा है, हमें 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज करने की टेंडेंसी है, but during reactions, if it releases only 1 hydrogen, for example, when H2SO4 reacts with 1 mole of sodium hydroxide, so it releases only 1 hydrogen, so in this case, its basicity will be 1. But if it reacts with 2 moles of sodium hydroxide, then it will release both its hydrogens, and in that case, its basicity will be 2, right? Similarly, the basicity of S3PO4 is phosphoric acid. Phosphoric acid. So its maximum basicity will be 3. ठीक है, ये 3 अपने हाइड्रोजन लूज कर सकता है, 2 भी लूज कर सकता है, 1 भी लूज करता है. ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शंस पे कितने हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, वो इसकी बेसिसिटी कहलाएगी. Now the C is charge for ions. Charge on ions, yeah, or this is for the salts, right? Now in case of salts, we see the total positive charge or total negative charge. For example, in case of NaCl, we see there is 1 positive charge and 1 negative charge. So you can select only one, either positive charge or either negative charge. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो it is 1. ठीक है, for example, अगर आपने ले लिया aluminium sulfate, this is a salt. So there is क्या जगह 2 Al3 plus ions, means there are 6 positive charges, and here the sulfate SO4 is Al2 SO4 thrice, right? So here there are 3 sulfate ions, so total negative charge will be 6, so the n factor of aluminum sulfate will be 6, right? So this is the n factor for the salts. Now number of electrons, this is in case of oxidizing agents and reducing agents. So this is applicable in case of redox reactions. Oxidizing agents, they gain during reactions. Reducing agents, they loses electrons during redox reactions. So whatever the number of electrons gained or lost by the oxidizing and reducing agents is the n factor. कितने electrons को अपने lose कर रहा है, gain कर रहा है redox reactions के दौरान, ये उसका n factor कहलाएगा. तो इसको हम निकाल सकते हैं क्या, या फिर हम लोग देखेंगे क्या, what is the change in oxidation number? Change in oxidation number कितना हो रहा है, और अगर हमने उसके number of atoms से multiply कर दिया, so we get the number of electrons involved in a chemical reaction. For example, if we have potassium permanganate, right, and this in acidic medium, if it reacts in acidic medium, so permanganate there is +7 charge, and acidic medium potassium permanganate means permanganate ion always converts into manganese ions, right? So in this case, there is gain of 5 electrons, or you can say there is change in the oxidation state of 5. So we can say here the n factor is 5. In alkaline medium, KMnO4, here the +7 state,
always converts into +4 state in alkaline medium. So in this case, the N factor will be 3. Similarly, if we have potassium dichromate, so potassium dichromate, the N factor will be 6. So this is the N factor for the oxide aggregates and reduced aggregates. Now, if our reacting substance is element, अगर हमारा reacting substance element है, so we take the valency of that element. For example, sodium, so 1, magnesium 2, aluminium 3, chlorine 1, right? So in this way, we take the N factors for the elements. Now see law of equivalence. According to law of equivalence, reacting substances have same chemical effect. यानी जितने भी substances आपस में react करते हैं, जितने भी substances reactions में involved है, उन सब का same chemical effect होता है. Means their number of equivalents are equal. Let us consider one reaction. See here, A plus B, this gives B plus D. So in this reaction, we can say that number of equivalents of A is equal to number of equivalents of B. This will be equal to number of equivalents of C and the number of equivalents of D. It means that all have the same chemical effect. Right. So अब हम लोग क्या करेंगे, इस concept को apply करेंगे numerical solve करने के लिए. So this is the equivalent concept and the law of equivalence. Now see, how will you apply this concept in numericals? Say this is one flow chart. ये एक आपके पास एक flow chart है. With the help of this flow chart, you can easily solve your numericals. So see, if we have the equivalence of known, अगर हमारे पास कोई reactions के दौरान अगर हमारे पास कोई भी ऐसा known substance है, यानी कि उसके mass given है, उसका volume given है, उसका number of particles given है, उसकी molality given है, तो उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से number of equivalents को निकाल सकते हैं. For example, if we have the reaction A plus B and this gives product, right? So we can say that here the number of equivalents of A is equal to number of equivalents of B. So अगर A का कुछ भी information हमारे पास है, for example, if mass of A is given or volume of A is given or number of particles of A is given or molarity of A is given and this volume is also given, so we can easily calculate the mass, volume, number of particles, molarity of this unknown substance. आप इस unknown substance का आसानी से जो है ये values आप आसानी से निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, for example, if we have the known substance here, right, and this one here the unknown, equate their number of equivalents, दोनों के number of equivalents को equate कर दीजिए, right, their number of equivalents are equal. अगर हमें we have the information of mass, right, so multiply by 1 upon m, it's molar mass. इसके molar mass से देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, divide कर दिया, you get the number of moles. Now number of moles, it may be converted into number of equivalents by multiplying by n factor. इसको number of moles और equivalents में देखिए relation क्या है, number of moles this multiplied by n factor, it is equal to number of equivalents, and number of equivalents when it is divided by n factor, it gives a number of moles, right? So if we have the information of mass of the reacting substance, so first of all convert it into number of moles, इसको number of moles में convert कर लीजिए और number of moles में convert होने के बाद आप इसको number of equivalents में convert कर लीजिए, यानी n factor से multiply कर दीजिए. Now in this side, अगर हमें इसका mass निकालना है, for example, its mass is n, this is m2, let it be m1, right? And this we have to calculate. ये हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसके इक्विवेलेंट्स को आ जाएंगे, इक्विवेलेंट्स पाने के लिए क्या करेंगे, इसके मोल्स पे आ जाएंगे पहले, और मोल्स से करने के लिए हम यहाँ पे इसके m से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. Now multiply by its n factor and easily you can calculate its mass, right? Similarly, if we have the information of volume, right, if we have the information of number of particles, so divide this volume by 22.4 liter, you get the moles, and this one divide by this Avogadro's number, ये देखिए यहाँ पे Avogadro's number से आपने डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और इनको अगर हम क्या करेंगे n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस साइड अननोन का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, राइट, आप जो है इसके पार्टिकल्स को भी निकाल सकते हैं, राइट, अगर आपने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसके मास को भी निकाल सकते हैं अगर आपने बोला मास से डिवाइड कर दिया, और इन सब में n फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इनमें से कोई भी चीज़ें निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, आप उसके मास को निकाल सकते हैं, ठीक है. इफ वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ मोलैरिटी, अगर हमें मान लीजिए इसकी मोलैरिटी का इंफॉर्मेशन है, सो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गया, एंड मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, दिस विल गिव द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स. तो मान लीजिए ये m1 है, और अगर हमें दूसरे अननोन सब्सटेंस का निकालना है मोलैरिटी, तो आप क्या करेंगे, दिस इज m2 एंड दिस इज, अगर उसका वीक इन्फॉर्मेशन है उसका n फैक्टर मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से आसानी से m2 निकाल सकते हैं. या अगर हमारे पास स्मॉल मोलैरिटी गिवन है उसकी और वॉल्यूम हमें निकालना है तो हम इस रिलेशन से वॉल्यूम भी आसानी से निकाल सकते हैं. नॉर्मलिटी का रिलेशन देखिए, आसानी से नॉर्मलिटी को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कन्वर्ट कर सकते हैं.
इफ यू मल्टीप्लाई नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम दिस विल गिव द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो आसानी से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ नॉर्मलिटी को भी निकाल सकते हैं। दूसरी साइड की अगर आपसे नॉर्मलिटी पूछ रहा है, उसका वॉल्यूम गिवन है, तो ये आप निकाल सकते हैं दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करके। तो एक्स वाई जेड आपसे कुछ भी पूछता है, यहाँ से आसानी से आप जो है इस फ्लो चार्ट की मदद से अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मोल कॉन्सेप्ट को बेसिक में इंक्लूड कर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कन्वर्जन मास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कन्वर्जन वॉल्यूम में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कन्वर्जन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कन्वर्जन मोलैरिटी में, और इसका मास कन्वर्जन मोल्स में। इस तरीके से हम सारे कन्वर्जन इसी फ्लो चार्ट के थ्रू कह सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे देखिए मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन, मोलैरिटी अगर आपने एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इट गिव्स यू नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर दिस गिव्स मोलैरिटी। तो ये सारे कन्वर्जन इस तरीके से आप ढेर सारे यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मोल कॉन्सेप्ट के साथ जो डिसएडवांटेज है वो उसमें जो कंडीशंस होती है कि इसमें आपको एक बैलेंस रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है। यू नीड अ बैलेंस रिएक्शन एंड द रिएक्शन शुड बी कंप्लीट एंड इट शुड बी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। तो जब तक आपके पास मोल कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपके पास कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो आप मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाओगे। लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कि रिएक्शंस को बैलेंस किया जाए। नो नीड ऑफ बैलेंस रिएक्शन, राइट? नो नीड ऑफ कंप्लीट reactions. If you have incomplete reactions, then after you can also calculate by equivalent concepts. Equivalent concepts आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है आप सो सॉल्व कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। आपको रिएक्शंस का अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, रिएक्शंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट्स आप नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसकी मदद से आप आसानी से इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं क्या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज मोर एडवांस कॉन्सेप्ट एंड मोल कॉन्सेप्ट, राइट? तो आप बेटर होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं, जो रिडॉक्स टाइट्रेशंस पे बेस्ड होते हैं, उन सब में जो आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं, उन सब में आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आसानी से आप जो है अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, ठीक है? तो देखिए एक दो क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन देख लीजिए, अप्लाई करके देखिए इसको। आप इसको मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट दोनों से लगा के देखिए कौन आसान पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे to measure the quantity of MnCl2 dissolved in aqueous solution, it was completely converted to potassium permanganate using the reaction. See here, this is reaction of manganese chloride, reaction with potassium thiosulfate plus water. This gives potassium permanganate plus K2SO4 plus SO4 plus HCl, right? So this is actually the formation of, is the preparation of potassium permanganate. यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मैंगनीज क्लोराइड वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट में, और हमें इसकी क्वांटिटी को निकालनी है। उसका मतलब क्या है कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की क्वांटिटी को निकाल लें तो हमें इसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो इसके हम पहले क्या करेंगे, इससे मोल्स को निकाल लें, मोल्स से हम इसके मास को निकाल लें, तो इसका मास इसके मास के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि आगे के फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड SO4 were added to this solution. इसमें कुछ SO4 मिलाया गया, यानी कि रिएक्शंस को एसिडिक मीडियम में कराया जा रहा है, gently moved. For the oxalic acid, and the oxalic acid का मास given है 225 milligram, was added in portions till the color of permanganate had disappeared. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट here is oxidizing agent and oxalic acid here is reducing agent, and this reaction takes place in acidic medium, right? Calculate the quantity of MnCl2 in milligram present in this solution. अब आपको इसकी क्वांटिटी को निकालना है, यानी इसका मतलब क्या है, आपको इसकी क्वांटिटी को अगर आप निकाल देंगे तो इसकी क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, राइट? तो सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के बाद फर्दर हमें आगे के रिएक्शंस को भी लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, पोटेशियम परमैंगनेट ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सैलिक एसिड से, H2C2O4, this oxalic acid, and this reaction takes place in acidic medium. There is H2SO4, so you have to complete the reaction. अगर आपको रिएक्शंस नहीं लिखना आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे देगा क्या, K2SO4, right, plus MnSO4, right, and there is evolution of carbon dioxide and also there is evolution of water. अब इस रिएक्शंस को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे KMnO4 का मोल्स कितना आ रहा है। You have to find out the number of moles of, यानी इस रिएक्शंस पे कितने मोल्स यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। जब आप ये मोल्स निकाल लेंगे आसानी से, तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास की मदद से। तो जब आपने इसका मोल्स निकाल लिया तो इसका मतलब है कि आपको MnCl2 का मोल्स पता चल जाएगा। तो MnCl2 का मोल्स और ये KMnO4 का मोल्स बराबर है,
इसमें हम क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास ये MnCl2 का हो जाएगा हमारा क्या 126, मैंगनीज 55 एंड प्लस दोनों क्लोरीन मिला के 71, सो दिस इज इक्वल टू 126। और यहाँ से अगर हम इसको बैलेंस करने के बाद देखेंगे तो इसका मिलीमोल्स, क्योंकि यहाँ मिलीग्राम में है तो मिलीमोल्स आएगा, मिलीमोल्स इंटू मोलर मास कर देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 126 मिलीग्राम। तो इतनी चीजें आपको मोल कॉन्सेप्ट में अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन, देन यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन एंड बैलेंस दिस रिएक्शन। उसके बाद फिर आप यूनिटरी मेथड से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितना मोल इसका यहाँ पे यूज हो रहा है, इसका मोल इस मोल के बराबर होगा, यानी कि दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसके मिलीमोल्स की मदद से हम क्या करेंगे, इसके मिलीमोल्स को निकाल लेंगे और इसके मिलीमोल्स मिलने के बाद हम इसके मास को निकाल लेंगे मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। सो दिस विल गिव यू 126 मिलीग्राम। अब इतनी चीजें आपको नहीं पता है तो आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ, दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर लीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में क्या क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स, अगर मिलीमोल्स है तो मिलीमोल्स कीजिए, यहाँ पे मिली इक्विवेलेंट्स कर दीजिएगा, मिली इक्विवेलेंट्स, मिलीमोल्स इनटू this is यहाँ पे number of millimoles into n factor, this is again here the number of millimoles, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लेगा, आपको n फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलीमोल्स इनटू इट्स n फैक्टर। नो नंबर ऑफ मिलीमोल्स में कैसे हम निकाल पाएंगे, इसका मास ले लें, मास इनटू मोलर मास से डिवाइड कर दिया एंड ये वी गेट द नंबर ऑफ मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर। जिसके फ्लो चार्ट के अंदर देखिए बिल्कुल क्लियर है, मास गिवन है, मोलर मास से डिवाइड करके इसका मोल्स निकालेंगे, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएगा इसका। सिमिलरली इस साइड भी क्या, ये हमें तो निकालना ही है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स, राइट, दिस इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर इज 5। ठीक, सपोर्ट हियर, यहाँ पे इसका मास गिवन है, दिस इज 225 एंड इसका हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास इज टू C2O4, दिस इज 90, राइट, तो दिस इज अपॉन 90 कर दिया, ये 90 रख दिया और इनटू n फैक्टर। सो इसमें हम देखेंगे क्या, ऑक्सैलिक एसिड इज एक्चुअली डाइबेसिक एसिड, ये अपने रिएक्शंस के दौरान 2H+ आयन रिलीज करेगा, सो इट्स n फैक्टर विल बी 2, सो दिस 2 कर दिया। अब यहाँ पे आ गया हमारा, इधर हमें इसका मिलीमोल्स निकालना ही है, इसके मोल्स को निकालना है और इसका n फैक्टर हो गया 5। सॉल्व कर लीजिए, आसानी से इसका मिलीमोल्स आ जाएगा, ये 1 आ रहा है। अब इसका मिलीमोल्स यानी इसके मिलीमोल्स के बराबर है MnCl2 के, MnCl2 के मोलर मास से यानी कि उसके 126 से मल्टीप्लाई करके आप इसके मिलीग्राम्स को निकाल सकते हैं, मिलीग्राम। तो सिंपली आप क्या करना है, आपको सिंगल स्टेप में देखिए, सिंगल स्टेप में अगर ये वाला स्टेप आप सिर्फ यूज कर रहे हैं तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ये अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंगल स्टेप में आप आसानी से न्यूमेरिकल, आपको कोई जरूरत नहीं थी रिएक्शंस को बैलेंस करने की, आपको कोई जरूरत नहीं थी रिएक्शंस कंप्लीट करने की, पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास था ऑक्सैलिक एसिड का, उसी की मदद से आपने क्या किया, यहाँ पे आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा एडवांस है। आप बेटर हुआ कि जितने भी पॉलीमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चन है, डॉक्स के क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसिस एक्सिस के क्वेश्चन है, उसको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए, दिस इज मच बेटर देन मोल कॉन्सेप्ट। चलिए, मेरे ख्याल से ये आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच।